involved. Generosity of spirit, generosity of spirit, ये जिंदगी का एक खूबसूरत थॉट है. Generosity of spirit, rich relationships, paradigm of human interaction, win-win. Let's find a solution that works for both of us. Both of us. People who choose to win and make sure others also win, practice win-win. They search for solutions that will make them happy and simultaneously satisfy others. So this is the concept. Naturally, I would be struggling to make me happy, but at the same time, as Stephen is saying, I have to take care others is also gets the winning feeling. Characteristics क्या है? Seek mutual benefit. Actions क्या है? इसको actions भी समझ सकते हैं और characteristics भी समझ सकते हैं. Seeking mutually benefit is cooperative, not competitive. ये ज़हन में रखना. Ego जो है वो that drives us towards competitive attitude. But Stephen is saying that under the title of win-win, we must have the attitude of cooperation. Third, listen more. ये हैबिट बनानी है. बड़ा मुश्किल है. सब्र करना बड़ा मुश्किल है. In communication, listen more, stay in communication longer, and communicates with more courage. कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो करेज के साथ पेश करें. ये नहीं है कि भाई आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे और दूसरे की बात की भी नहीं सुन रहे, बस अल्लाह है नहीं. अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी करेज के साथ देना, हिम्मत के साथ देना. बट एट द सेम टाइम आई हैव टू बी generous enough. I give the space, I give the time so that the other guy could also share what he wants to say. So this is the concept. This is the paradigm of human interaction, on which we would be winning. We will have the habit win-win. Win-lose, very simple. I'm going to beat you no matter what. People with a win-lose paradigm are concerned with themselves first and last. They want to win and want others to lose. Jealousy hai. They achieve success at the expense of exclusion of others. They are driven by comparison, competition, position and power. इससे बचना है, इससे बचना. और यहाँ फिर हम जरा कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स को देखते हैं. इट्स वेरी कॉमन स्क्रिप्टिंग फॉर मोस्ट पीपल is the authoritarian approach. Uses position, power, credential, positions, personality to get them in. Paradigms of human interaction, something.
win win. A better win lose authoritarian approach, lose win loser peacemaker at all costs, lose lose enemy centeredness के मेरा भी अगर फायदा नहीं हो रहा तो दूसरे का भी नहीं होने देना. So that's why it is known as enemy centeredness. Win. Other party is irrelevant. Means कि बस मेरा भला हो जाए, मुझे नहीं पता कि दूसरे का क्या होता है. And so this belief we have to build. Win win or no deal. Think win win, not a technique, but a total philosophy of human interaction. अपनी सोच को बदलना होगा, अपने थॉट को बदलना होगा, अपने पैराडाइम को बदलना होगा और अपने जो वो है वे वी एक्ट अपॉन उसको बदलना होगा. Abundance or scarcity mentality. So लाइफ में हमारी ये दो एस्पेक्ट्स हैं, दो सोर्सेज हैं जिनको हम एक्सप्लॉइट करते हैं when we interact with other people. Where one is abundance mentality and other is scarcity mentality, mindset mentality. If you don't have some grounding in the private victory, it will be difficult to think win. Private victory, we have learned that based on the first three habits, जिसमें be proactive, begin with the end in mind, and so the third one, it will be difficult to think win win. If you don't have some grounding in the private victory, it will be difficult to think win win. Abundance, पहले मैं scarcity mentality को डिस्कस करता हूँ. I believe there is only so much, and the more you get, the less there is for me. जिसे कंजूस नहीं कहते पंजाबी उर्दू में, scarcity mentality. दूसरे को मिला तो मेरे लिए कुछ नहीं रहा. I am threatened by the successes of others, jealousy, especially those closest to me. I treat people with very degrees of respect based on their positions. जो सीनियर्स होंगे उनके साथ हमारा एटीट्यूड और होगा, जो जूनियर होंगे उनके साथ हमारा एटीट्यूड और होगा. I find my sense of self-worth from being compared and from competition. मैं हमेशा competitive attitude के साथ इंटरेक्ट करता नजर आऊंगा, स्केर्सिटी मेंटेलिटी के साथ इंटरेक्ट करता हुआ नजर आऊंगा. लेकिन इसके मुकाबले में जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है abundance mentality, abundance mindset. वो क्या है? I believe there is plenty out there for everyone. Options
success, opportunities, credit, all these options are available for everyone. I believe there is a plenty out there, plenty, बहुत है. मुझे भी फायदा होगा और दूसरे को भी फायदा होगा. मुझे कंजूस बन के नहीं सोचना, मुझे स्केर्सिटी मेंटेलिटी के साथ नहीं सोचना. मुझे एक, जैसे उर्दू में एक लफ्ज ना गनी इस्तेमाल होता है, खुले दिल वाला बंदा जो है, उस तरह अपनी सोच रखनी है. I am happy for the success of others, especially those close to me. I am threatened by the successes of others. आप देख लें, whosoever is carrying scarcity mentality, वो शख्स दूसरे की कामयाबी को बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करता है. I treat everyone with equal respect. I treat people with varying degrees of respect based on positions and status. I find it, फिर abundance mentality, I find it easy to share recognition and credit. I have a difficult time sharing recognition and credit. मतलब दूसरे को recognize करना, दूसरे को मुबारक देना, दूसरे को appreciate करना when he succeeds. Scarcity mentality वाले शख्स से you must be knowing, मतलब हम सब इसमें से गुजरते हैं और कंजूसी कर रहे होते हैं. और ये एक अजीब सी अंदर से कफियत होती है स्केर्सिटी मेंटालिटी वाले की, कि यार पता नहीं क्या है, मेरे नंबर उतने नहीं आए, उसके आगे हैं, और वो चलते रहते हैं अंदर अपने. मेक ईच phase above where you think you are on the continuum. एक एक्सरसाइज उन्होंने दी है. We live by principle that my success is your success. Ultimately ये सोच लेके आनी है, ये पैराडाइम लेके आना है, ये एटीट्यूड लेके आना है. अब प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक. वी लिव, प्रॉमिस करें अपने आप के साथ, वी लिव बाय द प्रिंसिपल दैट माय सक्सेस इज योर सक्सेस. सो आगे चलते हैं. बैलेंस, इस सारे कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट. बैलेंस करेज एंड कंसिडरेशन. करेज अपने लिए, कंसिडरेशन दूसरे के लिए भी मैं पॉजिटिवली सोचना है. करेज, willingness and ability to speak your thoughts and feelings. मतलब ये जहां दूसरे के लिए कंसिडरेशन करनी है, वहां अपने लिए बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, कमिटमेंट के साथ, willingness and ability to speak your thoughts and feelings. Consideration, willingness and ability, उसी स्पिरिट के साथ, to seek and listen to others' thoughts and feeling with respect. तो यहां अपने अपना माइंड सेट जो है ना, वो टिका के हमें चेंज करने की जरूरत होगी. जेलसी का जो बुत है अंदर से, उसको ब्रेक करना होगा. सो दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट. तो अब नीचे इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है. पिक वन पर्सनल and one professional relationship.
think about how you typically interact with them. Rate yourself on courage and consideration by putting their names where they fit on the grid. So this is again the exercise he has given to us so that we could think in that way, so that we could write in that way. And by doing this exercise, and particular this exercise will help us to change our paradigm from negative paradigm to win-lose, from win-lose paradigm to win-win paradigm. अब जरा इस ब्लॉक को देखें. Vertical is courage, horizontal is consideration, and these are four possibilities. One is lose-lose, another one is lose-win, and third win-lose. तो मैं जीत जाऊं, दूसरे की जीत जो मुझे कबूल नहीं है. एंड द फोर्थ वन इज विन-विन. ये है हमारा ऑब्जेक्टिव, ये है हमारी मंजिल कि हम भी जीते, दूसरा भी जीते. तो इसमें ये आगे चलते हैं. सो हैबिट, this habit is complete. कौन सी habit? So we have covered 3 habits, and the fourth one we have just covered. And now we will discuss the habit 5. Seek first to understand and then to be understood. ये जरा गौर करें, बहुत मुश्किल, ये बहुत मुश्किल है. इसलिए कि सारी उम्र तो हम, कोशिश हमारी ये होती है कि मैं जो बोलना चाहता हूं, मैं जो कहना चाहता हूं, वो सब्र नहीं होता हमसे और दूसरे के ऊपर ठोसने की कोशिश करते हैं. लेकिन स्टीफन कभी कहता है कि अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बेहतर रखने हैं तो ये कुलिया उसने बताया, ये फार्मूला उसने बताया. क्या? सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, हैव द पेशेंस, सब्र करें, सब्र करें. आप
वो जब बोलेगा आपके लिए भी मौका मिलेगा. सो आपने पुट प्रेशर ऑन यू. I have to understand, I have to listen the other person first with the attention of 100% attention. ये नहीं कि थोड़ा सा हाँ सुन तो रहे हैं बट बॉडी लैंग्वेज आपको साथ ना दे रही है. So we have to listen to the person along with my body language, positive body language. Right. अब नीचे आते हैं. The habit of mutual understanding. वो नाम था उसका और ये प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या है? The habit of mutual understanding. So abundance mentality की जो पहले बात हुई है, आखिर मैं abundance mentality कैरी करूंगा कि जहां मेरा फायदा हो रहा है दूसरे का भी फायदा हो, तब ही ये हैबिट जो है ना हम इसको मटेरियलाइज कर सकते हैं, इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं. क्योंकि इसमें अपना फायदा तो सोचना ही है, दूसरे के लिए भी मेरी फीलिंग वही होनी चाहिए कि वो भी विनर, मैं भी विनर हूं, वो भी विनर. दैट्स व्हाई इसका नाम जो है विन विन. दूसरा नाम इसका है विन विन पैराडाइम. First, seek first to understand, then to be understood. This is the official name, और practically ये है कि जहां win-win belief रखते हैं. We generally listen to others to react, not understand. गौर कर लें हम अपने अपने क्या क्या कहते हैं गिरेबान में झांके देखें. स्टीफन कभी सही कह रहा है गलत कह रहा है. We generally listen to others to react, not to understand others. तो ये पैराडाइम चेंज करना है, ये एटीट्यूड तब्दील करना है. जहां हमने चिल्ला काटना है, मेहनत करनी है, अपने अपनी ईगो को कंट्रोल करना है और अबंडेंस मेंटालिटी के साथ अपनी वी हैव टू कंट्रोल आवर ईगो. क्योंकि ईगो जो है वो हमें ये कहती है और नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, दूसरे का भला ना सोचो, बस अपना भला सोचो. लेकिन वहां से हट के हमने ये माइंडसेट जो है, ये पैराडाइम जो है और ये जो एटीट्यूड है वो लेके आना है. बट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. Principle. Habit 5. What is the principle? The principle is to communicate effectively. ये पहला हिस्सा है उसका. To communicate effectively. अपना उस वहां आपने शर्म नहीं करनी, वहां आपने कमजोर नहीं पड़ना. You have to communicate effectively. But at the same time, we must first understand each other. We must first understand each other. This is very, very important. And the paradigm, ineffective paradigm जो अक्सर कैरी कर रहे हैं, I listen with the intent to reply. I'm listening, but अंदर से मेरा यही है कि ये अपनी बात जल्दी से मुकम्मल करें और मैं जो कहना चाहता हूं वो मैं कह सकूं.
I listen with the intent to reply. And so this ineffective paradigm must be changed by effective paradigm, and it is I listen with intent to understand. नियत, पूरी नियत के साथ मैं दूसरे को सुनूं, ये पैराडाइम जो है ना वो डेवलप। लेकिन याद रखें कि एट द सेम टाइम वो कहता है कि आपने कमजोर नहीं पढ़ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने टिका के पेश कर, कमजोर नहीं पढ़ना उसमें, बट दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी आपने पूरी तवज्जो से सुनना, और दूसरे को पहले मौका दें ताकि इमोशनल बैंक अकाउंट आपका बिल्ड हो सके, और फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू टिका के दें। So the behaviors, Stephen, in this slide, Stephen is giving us the guidance about the behaviors. Diagnose before you prescribe. Diagnose before you prescribe means जैसे डॉक्टर करता है कि पहले वो डायग्नोज करता है, फिर वो प्रिस्क्राइब करता है, फिर वो बताता है कि भाई ये करना है, वो करना है, ये है, ये दुआ है। इसी तरह हम भी डायग्नोज बिफोर यू प्रिस्क्राइब, लिसन एम्पैथी करिए, लिसन एम्पैथी, एम्पैथी रखनी है दूसरे के लिए। We must deal with other guy with the spirit of empathy, with the spirit of empathy. It's very difficult. One of the most difficult attitude is to build empathy for others. Seek to be understood from the other's perspective. Seek to be understood from the other's perspective. क्या खूबसूरत बात उसने कही कि जितनी दिलचस्पी से आप अपनी बात दूसरे को समझाना चाहते हैं, उतनी ही दिलचस्पी के साथ आप दूसरे की बात सुनें। Seek to be understood from the other person's perspective, कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरे की थॉट प्रोसेस क्या है, उसको भी पूरी दिलचस्पी के साथ आप सुने। And results, once we change our paradigms, once we change our behaviors, and the positive results which we will get are greater influence with others. We have better influence, we have better relationships, solutions to complex problems, clarity on real issue, faster problem solving. So you have to, is a very, very important habit 5. So diagnose before you prescribe. उसको स्टीफन यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करता है। Most people don't take necessary time and effort to properly diagnose the symptoms before prescribing solutions. They immediately assume, they understand, ये assume कर लेते हैं immediately हम someone else's condition and quickly offer their own advice. बेसब्री के साथ
सुनते हैं और हाँ मैं आपकी बात समझ गया एंड देन वो जो जो सोच आई, जो थॉट आया, उसकी बेस पे मैं फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर देता हूँ। हाउ डिड यू फील? अगर ऐसा हो तो आप क्या फील करेंगे? अगर describe a time when someone didn't listen to you before prescribing an answer. तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा है कि अपने जेहन में लाओ जरा कि अगर दूसरा शख्स आपकी बात को पूरी तवज्जो, पूरी दयानतदारी के साथ नहीं सुन रहा, तो फिर आपकी जो नेगेटिव फीलिंग होती है उस वक्त वो किस तरह की हो? तो वो ये जैसे मैंने लिखा हुआ है, इरिटेटेड फील करेगा बंदा, फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, डिप्रेस्ड फील करेगा। और सो तो ये एक बड़ी खूबसूरत एक्सरसाइज है। व्हेन डू यू मोस्ट ऑफन फेल टू लिसन टू अदर्स? व्हेन डू यू, मतलब हमें सवाल कर रहा है, when do you most often fail to listen to others? कब आप अपना मुहासबा करें और सोचें कि कब कब आप इस तरह से बिहेव करते हैं। What gets in the way of listening effectively? Beautiful ये क्वेश्चन है। मैंने कहा कि जरा सोचें कि वो उस वक्त आप क्या, आपके ज़हन में क्या चलता है, क्या होता है कि गेट्स द व्हाट गेट्स द वे ऑफ लिसनिंग इफेक्टिवली, कि हम दूसरे की बात तवज्जो से नहीं सुनते, सब्र के साथ नहीं सुनते, पेशेंस के साथ नहीं सुनते। क्यों होता है ऐसा? वन फ्रेंड, वन पर्सन who is truly understanding, who takes the trouble to listen to us as we consider our problem, can change our whole outlook on the world. My goodness. मतलब as a psychologist, he is saying कि अगर हम ये हैबिट अडॉप्ट कर लेंगे, हैबिट 5 अडॉप्ट कर लेंगे, तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा, ये चेंज आएगा हमारी सोच में, हमारे पैराडाइम में। वन फ्रेंड, वन पर्सन who is truly understanding, who takes the trouble for listen to us as we consider our problem, can change our whole outlook on the world. So keep in mind it. Listen empathically. Empathy, सारा चक्कर एम्पथी का है हमारी जिंदगी में, जिसका हमें पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि व्हाट, ये किस जानवर का नाम है एम्पथी जो है। तो इसको जरा देखते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग इज reflecting what a person feels and says in your own words. इनकी डेफिनेशन है कि इस तरह से सुनना है दूसरे को। कैसे? एम्पैथिक लिसनिंग इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट अ पर्सन फील। वो शख्स जो है वो, उसका दुख है क्या, वो कैसे फील कर रहा है, वो क्या उसकी फीलिंग्स हैं, एंड सेज इन योर ओन वर्ड। और फिर वो जो फीलिंग्स हैं उसकी, जिसको आपने ग्रैस्प किया है, सब्र के साथ, तवज्जो के साथ, पेशेंस एंड तवज्जो,
पेशेंस एंड अटेंशन। तो वो आप उसके सामने रखें। इट इज नॉट लिसनिंग to advise, counsel, reply, refute, or solve, fix, change, judge, agree, disagree, question, analyze, or figure out. वो कहता है कि ये जो हमारे रिएक्शंस होते हैं ये लिसनिंग नहीं है। लिसनिंग हम करते ही नहीं है। जो ही the moment the other guy starts something saying which I don't like, yeah, immediately I'll become reactive. So मैं empathic empathy के साथ वो बात फिर नहीं सुनूंगा। तो मैं इसको जरा रिपीट फिर कर देता हूं, इसको लिख लें आप। Empathic listening is reflecting with a person what a person feels and says in your own words. It is not listening। क्या एडवाइस आपने फौरन एडवाइस देना शुरू कर दी, लिसनिंग नहीं है। काउंसलिंग नहीं है, रिप्लाई, ये कुछ भी लिसनिंग की कैटेगरी में नहीं आता। ये ज़हन में रखना है आप। लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग की कैटेगरी में वो किस तरह से सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या कह रहा है, और जो वो कह रहा है इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं लिसनर हूं, कि मैं उसकी बात को सही तरह समझूं। तो उसमें ये ट्रेडिशनल चाइनीज कैरेक्टर टू लिसन विद virtuous heart, eyes, ears, हम ये तीन सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू वी लिसन। उसमें ईयर्स हैं, आईज हैं एंड हार्ट। ब्यूटीफुल। जब तक हार्ट शामिल नहीं होगा बात नहीं बनेगी। एम्पैथिक लिसनिंग डिमांड करती है कि ईयर और आईज के साथ आपने दिल से भी सुननी है उसकी बात। तो ये एक ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, इसको प्लीज तवज्जो से देखें, बार बार देखें, पढ़ें, समझें एंड मेक, अपने आप को चैलेंज दे कि भाई मैंने अब रिएक्टिव लिसनिंग की बजाय एम्पैथिक लिसनिंग की हैबिट जो है वो अडॉप्ट करनी। इसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इज अ ब्यूटीफुल स्लाइड, प्लीज पूरी तवज्जो से देखें। When we communicate face to face about likes and dislikes, our body language, tone of voice, body language one thing, tone of voice दूसरी चीज, and feelings, body language, tone of voice and feelings communicate more loudly the words we use। आप जरा गौर करें, इसमें वो ये नहीं कह रहा कि वो उसने व्हाट ही सेड, वो नहीं है यहाँ पे। वो कह रहा है, वो कह रहा है कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है व्हेन आई एम स्पीकिंग, तो मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरी जो टोन उस वक्त है, मेरी जो फीलिंग्स हैं, वो ट्रू मैसेज जो है ना वो दूसरे शख्स को दे रही होती है, मोर लाउडली देन द वर्ड्स
कम से कम मैं अपनी बात करता हूँ कि व्हेन आई अटेंडेड when I read this book, Seven Habits of Highly Effective People, and afterwards I uh, attended the session also of Stephen Covey completely. So it was really, मुझे क्या कहना चाहिए कि I was not having this idea कि words का impact तकरीबन बहुत कम होता है. I was not having this idea. क्योंकि सारा जोर ही हमारा अल्फाज पे होता है. हम ये भूल जाते हैं कि अगले शख्स को जो चुभन हो रही है वो बॉडी लैंग्वेज, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरी जो टोन है और मेरी जो फीलिंग्स हैं, उससे उसको परेशानी हो. अब ये जरा ग्राफ देखें तो गौर करें जरा कि सबसे कम ये देखें ब्लू है 7%. द रोल with respect to creating impact on the other person, वर्ड्स का रोल जो है 7%. यकीन नहीं आता. अब वो हैरान, मैं तो हैरान हुआ. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. माय गुडनेस. उसके बाद बॉडी लैंग्वेज जो है, बॉडी लैंग्वेज के मैं महसूस क्या कर रहा हूँ और हाथ पांव मेरे कैसे चल रहे हैं, वो है कोई 40%. और पीछे जो बचा है 55%, वो क्या है? वो है हाउ वी से वर्ड्स, टोन ऑफ वॉइस. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. इसीलिए आप गौर करें कि जब दूसरा शख्स रिएक्ट करता है तो हम कहते हैं मैंने तो कोई यार ऐसी सख्त बात नहीं की. ओ भाई मेरे, वो बात का तो असर ही हार्डली 7%. जिस बॉडी लैंग्वेज और जिस टोन के साथ मैंने बात की है, तलवार तो वो थी जिससे उसका दिल छलनी हो गया. यकीन जाने, फॉर मी इट वाज रियली प्लेजेंट सरप्राइज. यार कमाल है कि अल्फाज का इम्पैक्ट सिर्फ 7%. गौर करें जरा इस. प्लीज ये नोट करें अपने पास, बिलीव पैदा करें इसके लिए कि अल्फाज का चक्कर नहीं है. चक्कर किसका है? बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस का. मजेदार बात यह है, इसमें एक बड़ा प्लेजेंट पॉजिटिव कैच है. व्हेन आई गेट sensitive, more sensitive with respect to my body language and tone and control both the things, आपकी वर्ड्स की सिलेक्शन ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएगी. ये कमाल है इसमें. तो ये इस पे गौर करें और आज से जबरदस्त तरीके से आपने whenever you talk to somebody, उसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन को जो है ना वो आपने फोकस करना है. तो उसके लिए ये एक ब्यूटीफुल एक्सरसाइज बनाई. रेड, येलो एंड ग्रीन. एंड व्हाट इज रेड? स्टॉप टॉकिंग and listen empathically when. वो कहता है कि वो सिनेरियो दे रहा है. Stop talking and listen empathically when
अब क्या सिचुएशन, देयर इज ए हाई इमोशन, अगर आप या दूसरा हाई इमोशन में है तो फिर तो बहुत ही जरूरी है कि एम्पैथिकली आप स्टॉप स्टॉप टॉकिंग बिल्कुल, एंड लिसन एम्पैथिकली। तो ये ज़हन में रखें, जब दूसरा शख्स इमोशनल है तो फिर आपने पहला राउंड उसको जीतने देना है। उसको कम से कम ये फीलिंग आए कि यार मेरी बात तो इसने तवज्जो से सुनी है। खूबसूरत बात है ये। और दूसरा, यू मस्ट गेट टू द हार्ट ऑफ एन इशू। वो कहते हैं कि दिल से दूसरे का इशू जो है वो समझने की कोशिश करें। यू फील यू डोंट अंडरस्टैंड, यू फील यू डोंट अंडरस्टैंड। तो फील करें उसको, फील करें। दैट्स कहते हैं कि अंडरस्टैंड का एक अगला स्टेप कि फील करें उसको कि उसकी इस वक्त फीलिंग्स क्या है। द अदर पर्सन डजंट फील अंडरस्टूड। तो ये ये इस तरह से आपने एनालाइज करना है। ये एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कह लें। ब्यूटीफुल। और इसमें ये रेड, मतलब ये रेड, उसने कहा कि अगर ये सिचुएशन है तो फिर समझें कि रेड है मामला, मतलब रुक जाना है, स्टॉप, अगर ये सिचुएशन है। क्योंकि ये सब कुछ नेगेटिव हुआ है और दूसरा शख्स हमारी ये बात नहीं समझ पा रहा, तो ये आप कोशिश करें कि अपनी बात को रोक दें, हौसला पैदा करें, आगे चलते हैं। ये लो, शो स्लो डाउन, वॉच एंड बी रेडी टू लिसन एम्पैथी। कहते हैं कि अपने कंट्रोल योर इमोशंस, टेम योर इमोशंस, और फिर ये करें, स्लो डाउन, वॉच एंड बी रेडी टू लिसन एम्पैथी। अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल करें, अपनी जबान को भी कंट्रोल करें, और चिल करें, और दूसरे की बात तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्पैथिकली का मतलब है तवज्जो से सुने, कि मैं कानों से भी सुन रहा हूँ, आंखों से भी सुन रहा हूँ, और दिल से भी सुन रहा हूँ। ये ज़हन में रखें।
ये किसी की तस्वीर आ रही है वैसे ही। चलो ओके वी बिगिन अगेन, शुरू करते हैं। और ये हमने स्लाइड कवर कर ली थी, तो अब जरा ये इसको गौर से देखें। The elements of empathic listening. Empathic listening is reflecting what a person feels and said in says in your own words. Empathic listening is reflecting what a person feels and says in your own words. You you feel, तो ये उन्होंने कुछ पॉसिबिलिटीज बताई हैं फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंगर, फ्रस्ट्रेटेड, एक्साइटेड, इरिटेटेड, इग्नोर्ड, और ये इस तरह से करके सारी पॉसिबिलिटीज उन्होंने बताई हैं जो कि एग्जीक्यूट हो सकती हैं। यू फील, इस तरह की कोई फीलिंग उस वक्त हम में से जो भी कोई होता है उसकी बनती है। तो उसके आगे फिर अबाउट, तो वो है तो जो कुछ भी है जिसके बारे में कंटेंट क्या है, टॉपिक क्या था, जो कुछ भी है उसके बारे में जो फीलिंग बनी मुख्तलिफ ये सारी उन्होंने दी हैं। और गौर कीजिएगा, इसमें कोई ना कोई फीलिंग हमारी बनती है जब हम अपसेट होते हैं। तो आगे हेल्पफुल लैंग्वेज टू गेट यू स्टार्ट, ये थोड़ा सा टिप्स दिए हैं, गौर करना है इस पे। एज आई गेट इट यू फील, सो एज you see it, you seem,
you must have felt. You sound, what I am hearing is, I am not sure I am with you, but your feeling now is. So tips नीचे दी हैं. Focus on the speaker, not on your correct response to the speaker. Focus on the speaker, not on your correct response to the speaker. If you get stuck, just repeat what speaker says. If you are sincerely trying to understand, you won't be perceived, as being manipulative. Don't be afraid of silence. Sometimes just listening and saying nothing is the best way to get to the heart of the other person, heart of the issue, heart of the issue. ये लास्ट स्लाइड थी. Now we will discuss about habit 6 and its principle. These, again, I'll remind you that against every habit, there is a principle. And so the definition of the habit, as well as this principle, these must be remembered और टिका के इनको हम अपने वे ऑफ स्पीकिंग में लेके आए. सो इसका प्रिंसिपल है, the whole is greater than the sum of its parts. The whole is greater than the sum of its parts. तो उसमें फिर उसी तरह if effective paradigm with respect to this habit is, it's either your way or my way or a compromise. Usually ऐसे होता है. You will agree with me कि usually ऐसे ही होता है. Either your way or my way or compromise. So effective paradigm क्या है? Together we can create better way or higher way. Together we can create better way or higher way. So when we learn this habit, so these behaviors are
related with this habit. Value and celebrate the differences. गुस्सा करने की बजाय, डिस्ट्रेस होने की बजाय, उलझने की बजाय, celebrate these value and celebrate the differences. And second, practice creative cooperation. और करें सर, हम तो इस तरह सोचते ही हैं कि जितनी भी वो आप डिसएग्री कर रहे हो, ये नहीं है कि सिर्फ जिसमें आप एग्री कर रहे हैं उसमें तो सब अच्छा अच्छा है, जिसमें आप डिसएग्री कर रहे हैं ये उसके लिए आपका बिहेवियर है। क्या है कि फिर भी आपने उसको वैल्यू करना है एंड सेलिब्रेट द डिफरेंस। डिफरेंस को सेलिब्रेट आप कर रहे हैं कि मेरा ये स्कूल ऑफ थॉट है, दूसरे का ये स्कूल ऑफ थॉट है। एंड द नेक्स्ट behavior, practice creative cooperation. Whether you agree or not at the moment, practice creative cooperation. ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये करना है। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? इनोवेशन एंड इन्वेंशन, न्यू एंड बेटर सॉल्यूशंस, ट्रांसफॉर्म रिलेशनशिप्स, appreciation of diverse perspective। हमें एक नया पैराडाइम, नया एटीट्यूड लेके आना है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट with respect to diverse perspective, we must appreciate। आप एग्री करें या डिसएग्री करें, but as far as our emotions are concerned, as far as our attitude is concerned, that must be as positive as we display in the case of agreement. This is the very, very important point. Value and celebrate the differences. पल्ले बांधनी है ये बात। ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत। वैल्यू एंड सेलिब्रेट द डिफरेंसेस। माय गुडनेस, गौर करें जरा, क्योंकि ये जिंदगी का हिस्सा है। घर में डिफरेंसेस हो रहे होते हैं तो वो तो फिर जो कुलीग्स हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से आ रहे हैं एक दूसरे के पास। सो पल्ले बांधनी है ये बात, इसको तवज्जो से करना है। मुश्किल काम है, लेकिन when you will believe in the wisdom of Stephen Covey, then it will be easy to learn and change your attitudes. People are often threatened by differences of opinion, perspective and background. ऐसे ही होता है। Once you identify a common purpose, seek out and learn from differences. Highly effective people don't just tolerate, highly effective people, जो इफेक्टिव है बंदा अपनी लाइफ में, अपनी कम्युनिकेशंस में, अपने जॉब में, तो उसका ये एटीट्यूड होगा। Highly effective people don't just tolerate differences or accept them, they celebrate। My God, celebrate them। आप गौर कहाँ ले गया, कहाँ ले गया? Not only के tolerate कर रहे हैं, not only के वो accept कर रहे हैं, वो कहते हैं celebrate करें। My goodness, क्योंकि at the end वो बताता है कि synergize होगा। 2 + 2 4 नहीं होगा, 6 होगा, 10 होगा, 12 होगा।
व्हाट इज सिनर्जाइजिंग? अब वो सिनर्जाइजिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। सिनर्जाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ interacting that highly effective people use to get to synergy or the third alternative. अगर आप वर्ड पे गौर करें, synergizing is a process of interacting that highly effective people, गौर करना है। अगर मैंने हाईली इफेक्टिव बनना है, आपने हाईली इफेक्टिव होना है, तो उसके लिए ये सिनर्जाइजिंग जो है, ये वेपन, ये हैबिट डेवलप करनी होगी। सिनर्जाइजिंग इज नॉट, गौर से जरा इसको सुने, रिजल्ट्स ओरिएंटेड पॉजिटिव एनर्जी। Synergizing is not a brain storming free for all that leads nowhere. सॉरी करूं कि होगी? नहीं, मैं सॉरी के लफ्ज बोल दूं कि भाई, है ना, वो लाइट ऑफ हो गई है, तो ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया है, तो प्लीज बेयर विद अस। एग्जामिनिंग अगेन, सिनर्जाइजिंग इज examining, exploring, and seeking different perspectives openly enough to alter or complete your paradigm. तो synergizing is not क्या है? Accepting others' ideas as full truth. Synergizing is not accepting others' ideas as full truth. मतलब एग्जामिन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। Win-win cooperation, win-lose competition, having a mutually agreed upon end in mind, having a mutually agreed upon in the end in mind, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक सोच हो कि भाई हमने पहुंचना कहाँ पे, हमने रिजल्ट क्या हासिल करना है इस डिस्कशन में से। ग्रुप थिंक गिव इन टू पीयर प्रेशर, वर्थ द एफर्ट एंड हाईली इफेक्टिव, ऑलवेज इजी। मतलब जो हम पहले करते रहे हैं वो तो इजी है, क्रिटिसाइज करना, डिसएग्री करना, लेकिन ये जो है ना, ये चिल्ला काटना है, इसमें चिल्ला काटना है। सिनर्जी का इस्तेमाल लाना है, एम्पथी इसमें बहुत ज्यादा लानी है, एम्पथी। टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन, आउटकम, सिनर्जी, थर्ड अल्टरनेटिव, उसके रिजल्ट्स क्या मिल सकते हैं? इमेजिन करें व्हाट स्टीफन कवी सेइंग कि 1 + 1 2 तो बहुत पीछे रह जाएगा, 3 पीछे रह जाएगा, 10 पीछे रह जाएगा, 1000 टाइम्स वो ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। कंप्रोमाइज, 1 + 1 = 1.5 के जब भी आप कंप्रोमाइज करेंगे, वो 1 से थोड़ा सा बेहतर सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन वो 2 नहीं होगा। डिफेंसिवनेस, अगर वो हम डिफेंसिव, उनमें से एक डिफेंसिव है, तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो 1 + 1 2 नहीं होगा, वो हाफ रह जाएगा। हॉस्टिलिटी, अगर वो जरा काफी मसला हो गया है, तो फिर तो वो कह रहा है रिजल्ट माइनस में चला जाएगा। वैल्यू एंड सेलिब्रेट द डिफरेंसेस, वैल्यू एंड सेलिब्रेट द डिफरेंस।
ये हम चेक करेंगे, राइट साइड। प्रैक्टिस क्रिएटिव कोऑपरेशन, जरा इसको गौर से देखना। Synergizing is a creative process that explore new possibilities to benefit all the parties involved. At its best, it is a process that results in the third alternative. तो उसका ये एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, गेटिंग टू सिनर्जी। तो उसमें योर वे माय वे। तो पहला स्टेप ये है कि हम वो जो डिसएग्री कर रहे हैं दोनों, वो एग्री करें कि भाई हम इसको प्रोसेस में डालते हैं। स्ट्रेट वे हम नो नहीं करते एक दूसरे को, तो हम इसको प्रोसेस में डालते हैं, इसको देखते हैं कि क्या है, फिर उसके ऊपर फिर रिफ्लेक्ट कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, और फिर डिस्कशन, प्यार मोहब्बत में डिस्कशन करते हुए दे क्रिएट न्यू आइडियाज, और फिर वहां से थर्ड अल्टरनेटिव जो है वो डेवलप होता है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि synergizing is a creative process that explores new possibilities. synergizing करेंगे तो फिर, अगर synergize नहीं करेंगे, अगर एक दूसरे के लिए अपना हार्ट ओपन नहीं करेंगे, एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट, डिसएग्री करना एक बात है, रिस्पेक्ट देना दूसरी बात है, फिर जाके ये थर्ड अल्टरनेटिव जो है ना वो हमें मिलेगा। व्हाट इज, ये हम इसमें से स्टेप टू, रिफ्लेक्ट viewpoints, restate the other's viewpoint to his or her satisfaction before you state your own. ये देखिए आम तौर पे हम ये नहीं करते। वो क्या कह रहे हैं कि मतलब पर्टिकुलरली व्हेन यू डिसएग्री, तो ये बड़ा जरूरी है करना, रीस्टेट द अदर्स व्यू पॉइंट। जो अदर्स व्यू पॉइंट जिससे आप एग्री नहीं कर रहे, आप उसको रीस्टेट करें, रीस्टेट द अदर्स व्यू पॉइंट टू हिज और हर सेटिस्फैक्शन बिफोर यू स्टेट योर ओन। अब सिंपली आप एग्री नहीं कर रहे, सिर्फ रीस्टेट करते हैं कि अच्छा भाई, जो मैं समझा हूं कि आप ये कह रहे हैं, ठंडे दिल के साथ, अच्छे दिल के साथ, पॉजिटिव टोन में। As you continue the process of getting to synergy, ask the other party. अब मतलब एक माहौल बन रहा है पॉजिटिव, तो उसमें आपने फिर ये इनिशिएटिव लेना है। Would you agree to a simple ground rule? I can't make my point until I restate yours to your satisfaction. You can't make your point until you restate mine to my satisfaction. ये वही जो ऊपर बात कही गई है कि खुले दिल के साथ एक दूसरे को बावर करवाएं कि आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी सोच ये है, और आप बताएं कि मैं सही समझा हूं, और अगर नहीं सही समझा तो मुझे करेक्ट करें। और जब वो एग्री कर जाए दूसरा शख्स, तो फिर आप उसके साथ डिस्कशन जो है ना, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। छोटी छोटी टिप्स हैं, बट बहुत लीथल है, बहुत
खुदा करे कि हम अपने एटीट्यूड्स में ये कॉन्सेप्ट्स ले आए, तो वी विल सी द वंडर्स। ये कन्फ्लिक्ट को मेल्ट होता हम देखेंगे कि किस तरह से सिनर्जी जो है ना वो क्रिएट होती है। राइट। तो फिर ये एक उसकी लास्ट स्लाइड थी। तो अब मैं, चूंकि टाइम हमारी तरफ से वो जो इजाज़त होती है वो कंप्लीट, एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने माशाल्लाह हमारा साथ दिया। आप लोगों ने ये सारे सेशन अटेंड किए, उसके लिए वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। और अपना बाद में भी कोई कांटेक्ट आपने करना हो तो आप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप मेरा नोट कर लें, 03214603,000, 03214603,000। तो ये मैं आपको रियली हल्फिया ये मैं आपको बताता हूँ कि वंस वन गेट द ग्रिप ऑफ दीज हैबिट्स, तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके मामला जो है वो इफेक्टिव हो जाते हैं, आपकी सिनर्जी आती है और आपकी कामयाबी जो है वो फिर आपके कदम चूमती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ब्लेस यू।